स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में। मैं हूं योजना भारद्वाज। एक ऐसा शो जो डिजाइन किया गया है सिर्फ हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। तो किस तरह से पैसे को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए ये आजकल की महिलाएं खूब जानती हैं। तो किस तरह से करें निवेश, कैसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो, इस सभी के सवाल हम आपके इस शो में जवाब देंगे। आपके इस शो में आपको तरीका बता दें शो में पार्टिसिपेट करने का, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं। एक ये तरीका है जिसमें आप शी लिखें, उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखें, उसे भेज दें 57575 पर। और दूसरा तरीका आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। she@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। इस पर जब आप हमें ईमेल करें तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखें। तो आपके यहाँ पर सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। PPFAS के VP जयंत पै। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू योजना। तो चलिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ नीतू भट्टाचार्य जुड़ गई हैं। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पूछे अपना सवाल। Hi, my name is Neetu. I'm 28 years old. I have started investing through SIP this year, and they are DSP BR 100,000 rupees, DSP small and mid cap 2,000 rupees, DSP micro cap 1,000 rupees, HDFC top 200,000 rupees, HDFC equity 1,000 rupees, Reliance growth 1,000, IDFC premier equity 2,000, Kotak 30,000. HDFC tax saver 30,000 once time. So please guide me. How is my portfolio? बिल्कुल। आपने कब से नीतू शुरू किया है इनमें इन्वेस्ट करना? From this year only, from this April only. ओके, बिल्कुल। आपके पोर्टफोलियो के बारे में आज जान लेते हैं किस तरह का आपका पोर्टफोलियो। जयंत जी, जिस तरह अभी नीतू ने बताया अपना पूरा पोर्टफोलियो, क्या राय देंगे आप इनके पोर्टफोलियो पर? Neetu, I think your portfolio is quite good. Your fund selection is good. Also, you have begun investing at the right age, and also you are investing a very good percentage of your income, that is 26% of your income. So all these three things are in your favor. Only a couple of things. One is that I think that there are too many mid-cap funds in your portfolio. First of all, there are too many funds, and over that too many mid-cap oriented funds. So we could reduce that proportion, because currently it's around 50% of your portfolio. We could reduce it to around 30%, because even though you are quite young, it makes it's more prudent to have not have more than say 30-35% of funds in the mid cap and small cap category. And also from the portfolio that I had received, I saw that you did not have any ELSS fund, but just now you mentioned that you are having a one-time investment in HDFC tax saver. So since you are already having it in that, I suggest you keep adding more in HDFC tax saver for your ELSS tax saving purposes. And for the rest, I think that you could discontinue your SIP in Reliance Growth Fund and DSP Micro Cap, and channelize the same money into HDFC tax saver. And also some of your other underperforming funds like Kotak 30, you could discontinue that and use that money to increase your SIP in DSP top 100. Also, HDFC equity and HDFC top 200 are quite similar in characteristics. So what I suggest is that you discontinue it in HDFC equity and you increase your SIP in HDFC top 200 by that same amount. So my portfolio for you is DSP top 100. So you should invest equal of 8,000 rupees in each of these. One is DSP top 100, HDFC top 200, DSP small and mid cap, and your current ELSS fund. Because if you did not have your HDFC tax saver, I would have recommended either Fidelity Tax Advantage or Franklin Blue Chip. But since you already have HDFC tax saver, you could invest 2,000 per month in that. तो बिल्कुल नहीं, तो आपके लिए यहाँ पर यही सलाह है कि आपने अच्छे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा है फंड। और जिस तरह से हमने दिखाया आपको आपका पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए, और जयंत जी ने भी यहाँ पर सलाह दी कि कुछ आपके जो फंड्स हैं वो आप डिसकंटिन्यू कर सकती हैं। और जिस तरह से आपने भी देखा कि पोर्टफोलियो, जिसे जयंत जी ने भी आपको बताया कि किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकती हैं और किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। चलिए एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है जिवाड़ी से, उषा गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। उषा, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। पूछे अपना सवाल। उषा, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मुझे दो या 3 साल के लिए बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है। जी। हाँ जी। कितना आप इन्वेस्ट कर सकती हैं उषा? 2 या 3 हजार रुपए। जी, आप पहली बार ये निवेश करने जा रही हैं? हाँ जी, मैं पहली बार इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। जी, चलिए, आपको अपने बच्चे के लिए 2 या 3 साल का आपका बच्चा है? आपको अपने बच्चे के लिए उषा इन्वेस्ट करना है? हाँ जी।
चलिए यहाँ पर जान लेते हैं जैन जी। उषा गुप्ता हैं रिवाड़ी से, जो कि जानना चाहती हैं अपने बच्चे के लिए ये इन्वेस्टमेंट आगे करना चाहती हैं, उसके फ्यूचर के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक ये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आपकी सलाह होगी इनको? उषा जी, मुझे लगता है अगर आपके बच्चे के लिए नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक का अगर इन्वेस्टमेंट है और अगर साल में आप अराउंड 24-25 हजार डाल सकते हो, तो ये 2000 पर महीना आप कोई भी लार्ज कैप फंड में डाल सकते हो। मुझे लगता है से फ्रैंकलिन ब्लू चिप ठीक रहेगा, नहीं तो एक सिंपल इंडेक्स फंड जो है बेंचमार्क CNX 500, आप अगर सिर्फ इंडेक्स फंड में भी डालोगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं है पर मंथ। तो मुझे लगता है एक ही फंड में अभी काफ़ी है, और जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा हम लोग फंड्स इंक्रीज कर सकते हैं। जी, और जैन जी ये कुछ और भी जानना चाहती थी। इनका एक और सवाल था कि 1 लाख रुपए भी ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं FD में, क्या ये सही रहेगा? अगर वो उनके बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो मेरी राय यह रहेगी कि वो ये 1 लाख इक्विटी फंड्स में डाले। अगर ये उनके लिए है तो मैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। दीज आर फंड्स विच इन्वेस्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, से राइट फ्रॉम 3 months to 18 months, अलग अलग टेन्योर्स के फंड्स होते हैं। और करेंटली 1 ईयर से ज्यादा जो फंड्स हैं उनमें अराउंड 9% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है। तो ये अगर एक लमसम में डालना चाहती है तो उसमें डाल सकती है जी। और अगर ये अमाउंट स्प्लिट करना चाहती है तो यही 1 लाख वो रिकरिंग डिपॉजिट्स, जो बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट्स है उसमें डाल सकती है। सो इफ शी इन्वेस्ट अराउंड 5000 पर मंथ, तो वो नेक्स्ट 20 मंथ तक उसमें डाल सकती है। करेंटली ICICI बैंक का जो रिकरिंग डिपॉजिट रेट है वो अराउंड 8.5% है, और SBI का रिकरिंग डिपॉजिट रेट इज अराउंड 8.25%। चलिए, हमें उम्मीद है इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बस एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से हैं रेखा। रेखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल। मैम जी रेखा, नमस्ते मैम जी। जी मैं अपना सवाल से बोल रही हूँ। जी जी। मैं न्यू पेंशन स्कीम और हेल्थ पॉलिसी के बारे में एडवाइस लेना चाहती हूँ जी। मैं इन पॉलिसी में निवेश करना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे कुछ सलाह दें। बिल्कुल, यहाँ पर निवेश करना चाहती हैं रेखा, मुरादाबाद से ये हैं। जैन जी, क्या कुछ सलाह देंगे? न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पूछना चाह रही हूँ, हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानना चाह रही हैं। रेखा, इट्स वेरी गुड कि आपने न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सोचा है। ये एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग टूल है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट सबसे कम है एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी और एनी अदर स्कीम जिसमें इक्विटीज इन्वॉल्व हो। ये सबसे कम है। इसका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है इज जस्ट 0.0009% पर ईयर, और आपको जो टोटल खर्चा जो होगा अकाउंट मेंटेनेंस का पर ईयर वो अराउंड 400 रुपया होगा। इसमें जो अराउंड 17 बैंक्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल द मेन बैंक्स डू इट, से ICICI, HDFC, यूनियन बैंक, एक्सिस, ये ऐसे 17 बैंक्स है जी। एंड प्लस रिलायंस कैपिटल, UTI, ILFS और LIC, ये 4 भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको। ये जो पैसा जो आप इसमें निवेश करेंगी वो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा, और ये जो आपका एज जो है वो हिसाब से बांटा जाएगा। फॉर एग्जांपल अप टू 35 इयर्स ऑफ एज, इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज होते हैं इसमें। एक है इक्विटी, सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जी, और थर्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कंपनी जो डिबेंचर्स ये सब जो इशू करते हैं उसमें। तो ये जो 3 अलग कैटेगरीज है, जो आपका एज है वो हिसाब से ये तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट ये फंड मैनेजर्स करेंगे। देयर आर 6 फंड मैनेजर्स डूइंग दिस वर्क, और आप कोई भी फंड मैनेजर चूज कर सकते हो, सबका परफॉर्मेंस मोर और लेस इक्वली है। सम एग्जांपल्स ऑफ फंड मैनेजर्स आर ICICI, रिलायंस, UTI और LIC, ये 4 है। इनमें से आपको जब आप अकाउंट ओपन करोगे तभी आपको फंड मैनेजर चूज करने का एक ऑप्शन होगा उसमें। ओके। तो आपका जो पैसा है वो इन 3 कैटेगरीज में डालेंगे, और जैसे आप 60 इयर्स या उसके वो क्रॉस करते हो तभी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो इसमें। इसमें भी 3 अलग अलग डिफरेंसेस हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि 60 इयर्स के नीचे लोगों को ये विड्रॉ करना पड़ता है। तो उसमें जो भी फंड जमा होता है वो एज पे जो भी वो विड्रॉ करते हैं उसमें वो 20% एक लमसम में निकाल सकते हैं, और जो बैलेंस 80% है वो एक मंथली इनकम में कन्वर्ट होके उनको हर महीना एक मासिक इनकम मिलता है उनको। और जैसे 60 इयर्स क्रॉस होता है
वो 40% विड्रॉ कर सकते हैं और 70 ईयर्स के बाद वो 60% विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आपका एज बढ़ता है आप एक ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फुल अमाउंट कभी विड्रॉ करने का अलाउड नहीं है। ओके। और इसका जो मेन एडवांटेज जो मैंने बोला है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम है। जो बाकी है जो पीपीएफ ये सब है उसमें तो जीरो कॉस्ट है, लेकिन उसमें आपको इक्विटी एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ओके। और जो हेल्थ पॉलिसी जो है मुझे लगता है कि जब आप हेल्थ पॉलिसी चूज करते हो आपको सिर्फ लो प्रीमियम पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो कस्टमर सर्विसिंग जो एबिलिटी है वो कंपनी का वो उसके हिसाब से जाना चाहिए। और इसके लिए आप जो आपके जान पहचान है उनसे थोड़ा आप रेफरेंसेस लेंगे तो अच्छा होगा। मेरी राय में जो अभी जो स्पेशलिटी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आए हैं, 3 एग्जांपल्स है मैक्स बुपा, स्टार हेल्थ और अपोलो म्यूनिक। ये तीनों में से आप कोई पॉलिसी लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो हेल्थ के लिए स्पेसिफिक जो प्रोविजंस है वो बहुत ही फेवरेबल है पॉलिसी होल्डर के लिए। तो मैंने एक एस्टिमेट किया आपके लिए, अगर आप 5 लाख का पॉलिसी लोगे तो स्टार हेल्थ का पॉलिसी आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, दैट्स अराउंड 4,900। अपोलो का होगा अराउंड 5,600 और मैक्स का थोड़ा महंगा है अराउंड 7,900। ओके। बट सिर्फ प्रीमियम पे मत जाना, उसमें जो थोड़ा फाइन प्रिंट है वो भी पढ़ के फिर आप डिसाइड कर लेना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर रेखा, हमें उम्मीद है कि जो आप निवेश करने जा रही हैं उसकी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल गई होगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो जाए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुछ और कॉलर्स के कॉल लेने इससे पहले आपको बता दें कि इस शो में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस के जरिए आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। शी लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखें, उसे भेज दें 57575 पर। और दूसरा तरीका है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, she@znetwork.com पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और सवाल के साथ साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपनी एज भी जरूर लिखें। चलिए, एक और हमारे पास सवाल हमें भेजा है चंडीगढ़ से रेखा मिश्रा। रेखा पूछना चाहती हैं, जैन जी, ये 5,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट करी है डीएसपी माइक्रो कैप ग्रोथ फंड में, इसके अलावा ये 5,000 और इन्वेस्ट करना चाहती हैं आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी ग्रोथ फंड में। क्या ये इनका डिसीजन सही होगा, क्योंकि पहले से ही इनके पास मिड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और ये भी दूसरा जो फंड होगा वो भी इसी कैटेगरी का होगा? हाँ योजना, तो मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ एक ही फंड उनके पास है तो मुझे नहीं लगता कि उनको आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में डालना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी सिमिलर है। सिर्फ जो मिड और स्मॉल कैप का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अलग अलग है दोनों फंड्स में, लेकिन जो बेसिक उनका जो रिस्क है ना, ये और एक फंड लेके ना ही उनका रिस्क कम होगा ना ही रिटर्न बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा 5,000 वो डालना चाहती है, अगर वो कोई लार्ज कैप फंड में डाले तो उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। तो मेरी जो राय है वो है एक फ्रैंकलिन ब्लू चिप, या अगर वो आईडीएफसी के ही कोई दूसरे फंड में डालना चाहती है तो आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी, ये एक लार्ज कैप फंड है। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है उनके लिए और अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल रेखा को यहाँ पर यही सलाह, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में पहले ही मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो बेटर आपको ये रहेगा कि अगर आप लार्ज कैप फंड कैटेगरी में यहाँ पर अपना जो पैसा है इन्वेस्ट करें। हमने आपको बताया जिस तरह से फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप या आईडीएफसी का अगर आप दूसरा फंड अगर आप चुनना चाहते हैं तो इंपीरियल इक्विटी, आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी में आप अपना जो 5,000 रुपए वो निवेश करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। चलिए, एक और हमारे पास सवाल भेजा है त्रिपुरा से प्रतिमा चक्रवर्ती ने। जंजी पूछना चाह रही हैं 2,000 रुपए पर मंथ ये निवेश करना चाहती हैं एसआईपी के जरिए, कौन कौन से फंड इनके लिए बेटर रहेंगे, और ये 1 साल के लिए इनका जो नजरिया है वो काफी शॉर्ट टर्म है, 1 साल के निवेश करना चाह रही हैं। यूजुअली जिनको 1 साल का जो होराइजन है, मैं कभी उनको इक्विटी फंड्स में डालने की सलाह देता नहीं हूँ, क्योंकि 1 साल में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, और अगर एक बार कोई इन्वेस्टर लॉस करता है ना तो वो पूरे जिंदगी भर इक्विटी से दूर रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मिनिमम 5 साल का जो नजरिया है तो ही आप इक्विटी फंड्स में आ जाए। जी। अगर इनका 1 साल है तो मैं उनको शॉर्ट टर्म डेट फंड सजेस्ट कर सकता हूँ। एक है एआईजी शॉर्ट टर्म डेट फंड और दूसरा है कैनरा रोबेको शॉर्ट टर्म डेट फंड। सो इनमें उनको अराउंड से 7.5 to 8% रिटर्न मिल सकता है। अभी एफडी के कंपैरिजन में ये थोड़ा टैक्स एफिशिएंट रहता है, इसलिए मैं एफडी के बदले शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालने की एक सलाह देता हूँ। अगर उनको इक्विटी फंड में डालना ही है
तो वो थोड़ा जो कंजर्वेटिवली मैनेज फंड्स है, फॉर एग्जांपल एक फिडेलिटी इक्विटी फंड है, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड या फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड, इनमें निवेश कर सकती है। इनमें थोड़ा रिस्क कम है लेकिन रिस्क जीरो नहीं है, क्योंकि इक्विटी का रिस्क तो ये सभी बेयर करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रतिमा को यही हमारी एडवाइस है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के चलेंगे, कम से कम 5 साल का, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं तो बेटर रहेगा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकें, इक्विटी फंड्स की तरफ भी जाना चाहती हैं, तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। चलिए, फिलहाल आज इतने ही कॉलर्स का हम सवाल ले पाए हैं। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में शामिल होने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त चला है। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी खास अचीवर से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब वक्त हो चला आपको हमारी आज के अचीवर से मिलवाने का। मिस इंडिया रही गुलपनाग बचपन से ही फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। 2003 से बॉलीवुड में कदम रखने वाली गुलपनाग ने भले ही चुनिंदा फिल्में करी हों, लेकिन वो अपने अब तक सफर को काफी रिवॉर्डिंग मानती हैं। नजर डालते हैं गुल के अब तक के सफर की कुछ झलकियों पर। The Femina Miss India Universe is contestant number 19, Gul. बचपन से ही ऑलराउंडर रही गुलपनाग फिल्म स्टार बनने का सपना देखती थी और इसी सपने को सच करने के लिए इन्होंने 1999 में मिस इंडिया पेजेंट के लिए एनरोल किया। मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतते ही गुल ने फिल्मी दुनिया की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया और जल्द ही मंजिल भी पाई। 2003 में इनका सपना हकीकत में बदला और आखिरकार कॉन्टेस्ट जीतने के 4 साल बाद गुल को 2003 में फिल्म धूप का ऑफर मिला। यहीं से शुरू हुई गुलपनाग की बॉलीवुड यात्रा। गुल के काम को सराहना नागेश कुकुनूर की फिल्म डोर में मिली। 2006 में फिल्म डोर के लिए गुल को जी सिने क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। इस फिल्म में इन्होंने जीनत का किरदार निभाया था। इसके अलावा गुलपनाग 2009 में फिल्म हेलो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और 2007 में डोर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। फिल्म्स के अलावा इन्होंने मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स भी किए हैं। गुल बचपन से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की शौकीन रही हैं। स्कूल टाइम में इन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में कई मेडल जीते हैं। गुल आज भी स्पोर्ट एक्टिविटीज से जुड़ी रहती हैं। तभी तो गुलपनाग हर साल मुंबई इंटरनेशनल मैराथन में हिस्सा लेती हैं। चलिए, गुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलपनाग, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि 1999 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन आपने कब और कैसे लिया? मैं ग्रेजुएशन के बीच में थी जब मैंने इस कॉन्टेस्ट में भाग लिया। जब मैं कॉलेज में थी मैं एक काफी ऑलराउंडर थी। पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, डेक्लेमेशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एकेडमिक्स। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक ब्यूटी पैजेंट का खिताब भी अपनी लिस्ट ऑफ थिंग्स में ऐड कर सकती हूँ, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये सोचकर मैंने फेमिना मिस इंडिया पैजेंट में अपनी एंट्री भेजी थी। ओके। गुल, देखिए तो जिससे बचपन से आपका जो रुझान है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ काफी रहा था, तो स्पोर्ट्स में करियर ना बनाकर बॉलीवुड में करियर क्यों बनाया? आई थिंक मैं एक करियर प्रोफेशनल बनना चाहती थी, लेकिन हर लड़की की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं एक फिल्म स्टार बनूं। जैसे हर लड़का सोचता है कि वो पायलट बनकर प्लेन उड़ाएंगे, मैंने भी जरूर सोचा था कि मैं जरूर एक फिल्म स्टार बनूंगी। लेकिन वो शायद एक बैक ऑफ द माइंड काइंड ऑफ थॉट था। मैं क्वाइट क्लियर थी कि मैं एक करियर प्रोफेशनल बनूंगी, जो भी करूंगी आई विल बी अ वर्किंग वुमन। बिल्कुल। और यहाँ पर बात करें तो बॉलीवुड में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। क्या कहेंगी आप बॉलीवुड में करियर बनाने के बारे में? आई थिंक ये एक ऐसा करियर है जहां पर फोकस्ड रहना और परसिवियर करना बहुत बहुत जरूरी है। थिंग्स डोंट हैपन हियर ओवरनाइट, टाइम लगता है और जो भी हो अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फोकस बनाए रखना चाहिए। चलिए, आपकी आने वाली जो फिल्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टर्निंग 30 हाल ही में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे हमें? करियर वुमेन के बारे में एक एस्पिरेशनल कैरेक्टर है नैना, जो मैं निभाती हूँ फिल्म में, जो एक ओवर अचीवर है। शी इज अचीव्ड अ लॉट
वेल बिफोर 30th बर्थडे। जो टारगेट्स उसने अपने लिए सेट किए थे कि वो अचीव करना चाहती है बिफोर 30, वो उन्हें काफ़ी देर पहले अचीव कर चुकी है और उसे लगता है उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। और फिर एक हवा का झोंका आता है और सब कुछ बिखर जाता है, और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के टुकड़े वापस उठाकर फिर चलती है, ये कहानी है। चलिए, ये तो रही आपकी फिल्म की बात। गुल, आप मुंबई मैराथन में भी नियमित रूप से हर साल हिस्सा लेती रही हैं, तो ये देखा जा सकता है कि स्पोर्ट एक्टिविटीज की तरफ रुझान ही है आपका, जिसकी वजह से आप हिस्सा ले रही हैं इसमें। जब से मैं स्कूल में थी, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। 800 मीटर्स की इवेंट में मैं दौड़ा करती थी, और जब मुंबई में पहली बार सैनिटायर मुंबई मैराथन हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं ट्राई करूं। और मुझे लगा नहीं था कि मैं 21 किलोमीटर दौड़ पाऊंगी, लेकिन कैसे भी करके जब मैंने ख़त्म की तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं 21 किलोमीटर के लिए दौड़ सकती हूँ तो और क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती। चलिए गुल, आपसे आखिरी सवाल मेरा होगा कि जो लड़कियां मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हैं, क्या टिप्स देंगी आप उन्हें? आई थिंक मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ब्यूटी पैजेंट्स आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लॉइट करने का, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस पहले होनी चाहिए। मैं ये अनुरोध करूँगी सबसे कि वो अपने आप को सीरियसली लें और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूर हासिल करें, और उसके बाद ब्यूटी पैजेंट में एंटर करें। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप अपने ब्यूटी पैजेंट के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं सिवाय बॉलीवुड आने के। जी, चलिए, शुक्रिया गुल आपका इस एडवाइस के लिए और हमारे शो में समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल शो से इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब के लिए नमस्कार।